So we are just waiting for few more minutes. Let's see if students, I think they will join within a few minutes, and then we will start our lecture. We're just waiting for few more minutes. I don't know why today my webcam is not working properly. Every time it's opening, but it's not opening. It's showing some error. So shall I start my lecture? Good morning, ma'am. Good morning, Soma. Very good morning. Though I'm trying to open my webcam, but I don't know why it's not working. Let me see. Okay, anyway, uh, I'm going to present my screen. Please let me know, is it visible to you or not? Is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes. Thank you. So, what we were doing the last time, we were discussing about the importance of organization behavior. We were discussing about the importance of organization behavior, and in that we have discussed about this individual component and this creating sustainable competitive advantage कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में क्रिएट करने में आपका हेल्प करता है और इंडिविजुअल कंपोनेंट में क्या था वो हम डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, we are going to discuss about this organizational component. ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन level पे how this OB is helping, how this organizational behavior is helping. So what organizational behavior is doing, that it helps in designing, structuring and changing a culture to create a learning and innovative organization. Let me give you an example. If because you all are aware that in an organization there are hierarchies, the horizontal hierarchy as well as the vertical hierarchy. And anybody they are supposed to follow the chain of command. So if I'm the employee in any organization and I have to complain regarding anybody, or if I have to discuss my employees, then I cannot bypass the channel. I have to follow that channel. I cannot say directly that I'm going to discuss it with the president. It's very obvious that I have to follow that chain of command. I have to follow that channel. I cannot bypass that channel. So apart from providing these hierarchies, at how there are hierarchies in the organization, apart from formulating or designing the organization structure, that who is going to report who will supervise whom, how many number of subordinates you will supervise, apart from all these things, sometimes organizations also help in eliminating these hierarchical systems. So let me repeat it in Hindi also. कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग गए होंगे और आपने वहां देखा होगा कि एक लेबल है, यानी असिस्टेंट मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर और द जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव. और अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव को किसी भी चीज के लिए डिस्कस करना है या कोई चीज कंप्लेन करनी है, देन दे कैन नॉट गो डायरेक्टली to the higher level, to the top management. They cannot do so. उनको एक चैनल फॉलो करना होगा. यानी अगर मुझे कोई कंप्लेंट है, मुझे कोई ग्रीवियंसेस है, तो पहले मैं अपने सुपीरियर से बात करूं, वो फिर उनके सुपीरियर से बात करें. इन दिस वे दिस चैनल विल फॉलो. अब ये चैनल हमें समझ में कैसे आए, हमें कैसे समझ में आए कि मुझे किसे रिपोर्ट करना है, मुझे किसे सुपरवाइज करना है,
मैं मेरी कमांड कौन मानेगा, मुझे किसकी कमांड को सुनना होगा, हाउ वी केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीजें हमें आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प करता है डिजाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट प्रिपेयर होता है कि आपका हिरार्कियल सिस्टम क्या होगा, आपकी अथॉरिटी कैसी होगी, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिसाइड करता है। अच्छा, कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, ये हिरार्कियल सिस्टम नहीं होता, मतलब इट्स टू डिफिकल्ट। आप अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो ऐसा कहीं नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम दे फॉलो द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, और वहां पे आपको हमेशा हिरार्कियल सिस्टम मिलेगा। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसा मिल जाएगा कि देयर इज नो हिरार्कियल सिस्टम, हिरार्की नहीं है, ऑल आर एट द सेम लेवल। यानी आपके डेजिग्नेशंस अलग अलग हो सकते हैं, है ना, बट यू ऑल आर एट द सेम लेवल, आप सबको सेम लेवल पे कंसीडर किया जा रहा है। तो यू शुड नॉट फील कि मैं किसी लोअर लेवल पे हूँ और सामने वाला किसी हायर लेवल पे है, नहीं, हम किसी लेवल को नहीं बना के चल रहे। वी आर नॉट क्रिएटिंग hierarchy in our organization, but what we are doing, we are creating a flexible organization. Of what is the benefit of creating this flexible organization? The benefit is that anybody can interact with anybody. यानी कि जो अभी तक मुझे करना था कि मेरे ग्रेवियांसेस के लिए मुझे पहले सुपीरियर को मेल करना होगा, फिर सुपीरियर देखेगा, इफ दे कैन सॉल्व इट इट्स फाइन, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो वो अपर लेवल पे जाएगा। लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है, इफ आई एम हैविंग एनी ग्रेवियांसेस, आई कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द प्रेसिडेंट, मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हूँ प्रेसिडेंट से कि दिस इज माय ग्रेवियांस। तो दिस इज द ओपन सिस्टम, दिस इज द फ्लेक्सिबल सिस्टम जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, जो जिनको ये लगता है कि ये हिरार्कियल सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी हिरार्कियल सिस्टम होगा उतनी ही ज्यादा माल प्रैक्टिसेस होंगी। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स क्या करेंगे, जितने भी उनको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो जरूरी है, जिससे उनका बेनिफिट है, जिसमें मुझे बेनिफिट है, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको पास करके चलूं। कंप्लीट ट्रू पिक्चर जो मुझे भेजी गई है वो मैं आपको सेंड नहीं कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ मैंने जितना मुझे लगता है कि आई हैव टेकन दैट स्क्रीनशॉट और मैंने आपको सेंड कर दिया। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट फिल्टरिंग दैट इंफॉर्मेशन, मैं फिल्टर कर रही हूँ इंफॉर्मेशन को। या फिर अगर आपने अपनी ग्रेवियांसेस या आपने अपना कुछ मुझसे डिस्कस किया, देन अगेन अगर मुझे टॉप मैनेजमेंट को देना है तो भी मैं सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन पासिंग कर रही हूँ। क्योंकि आप देखते हैं जब भी कोई इंफॉर्मेशन which passes from so many levels, जिस इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लेवल से गुजरना होगा, लास्ट में जाके या तो वो इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड हो जाएगी या सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन पासिंग होगी, जो हमें लगेगा कि हाँ ये चीज बतानी चाहिए, उसको बताएंगे, नहीं तो ऑल अदर थिंग्स वी आर सेल्फ अज्यूम्स, हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि इररेलेवेंट है। We don't look the perspective of that complainant, हम उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम क्या करें, हम खुद से we have decided from our side कि मैं मैनेजर हूँ, मुझे लगता है ये सारी चीजें, वो these are childish things, ये कोई बात थोड़ी बताने की टॉप मैनेजमेंट पे, we are not going to consider this। हाँ, बस टू द पॉइंट बता के ठीक है। अब वो पर्सन क्यों ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सर्कमस्टांसेस क्या है, अगर आप पूरा इलेबोरेट नहीं करेंगे, आपने यू योरसेल्फ डिसाइडेड, then it is of no use, तो उसके ग्रेवियांसेस कभी सॉर्टेड आउट नहीं होंगे, कभी कुछ उसको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स के डिजाइनिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको। इसीलिए टाइम टू टाइम मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे आर रीडिजाइनिंग देमसेल्फ कि हमारा जो हिरार्कियल सिस्टम है उसको रीडिजाइन करें, हम उसको इस तरह बनाए कि जो फ्लेक्सिबल हो, जो अप्रोचेबल हो। अब यही ना हो कि डायरेक्टर है वो मेरे अप्रोच में ही नहीं है, आई कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली टू द डायरेक्टर बिकॉज माय सुपीरियर इज सेइंग दैट इफ यू आर डूइंग सो यू आर बाईपासिंग द चैनल। So if I have to come, there is a very good example. ये जो I'm not able to recall the name of the department, जो roads construct होती है वहाँ पे there is one employee that was the government organization, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय को अपने मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन करना था अगेंस्ट देम। तो व्हाट दे हैव डन, दे हैव रिटन कि यहाँ पे इतना ज्यादा ब्राइब लिया जा रहा है और बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस हैं, टू द पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिख दिया। एंड व्हाट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बाद में वापस भेज दिया उनकी कंप्लेंट,
उन्हीं के सुपीरियर के पास, ये कहते हुए कि यू हैव बाईपास द चैनल। तो अगर मुझे अब इफ लेट्स सपोज कि सुष्मिता इज माय मैनेजर और सुष्मिता के खिलाफ ही मुझे कंप्लेन करना है, देन फर्स्ट आई शुड टेक द परमिशन फ्रॉम सुष्मिता कि सी बॉस, आई एम गोइंग टू गिव कंप्लेन अगेंस्ट यू। इज इट फीजिबल रियली? मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस पे साइन करके देंगे कि हाँ ओके, आई एम ओके विद दैट, यू कैन प्रोसीड, आप जा सकते हैं हायर लेवल पे? नो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो अब आपका हिरार्कियल सिस्टम कैसा हो? हिरार्कियल सिस्टम ऐसा ना हो जो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दे, जहां लोग कम्युनिकेट ना कर पाए, which creates so many hassles for your employee। और होता ही ये है कि इतनी सारी हिरार्कियल सिस्टम बनाने की वजह से या तो मिसकम्युनिकेशन होता है या कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया अपने एम्प्लॉयज को, जो मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं बताना चाहिए सो दैट आई कैन कंट्रोल माय एम्प्लॉय, तो मैंने उतनी चीजें अपने एम्प्लॉयज को नहीं बताई। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन डिजाइनिंग दिस स्ट्रक्चर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो। अल्टीमेटली दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ओनली, whether they want to follow that organizational chart hierarchical level or are they going to follow that practice कि नहीं भाई हमारा फ्लेक्सिबल अप्रोच होना चाहिए। और फिर आपका कल्चर बनता है। अगर आपने हिरार्कियल सिस्टम को खत्म कर दिया then your organization will be having a open transparent culture, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कल्चर बन जाएगा। कोई भी किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, it's not bypassing the channel, you are not violating any rule, you are just abiding by rule, but it is the policy or it is the procedure or your organization is structured in such a way that you can approach with to anybody irrespective of their designation, then the consequences will be that your organization will be having a ट्रांसपेरेंट कल्चर, एक ट्रांसपेरेंट कल्चर बन जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इफ आई एम डूइंग एनी रॉन्ग विद माय सबऑर्डिनेट देन दे कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, अब उन्हें मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट कल्चर हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्टिवली पास आउट नहीं हो रही होती है। और फिर आप ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक लर्निंग, एक इनोवेटिव कल्चर डेवलप हो जाता है। क्योंकि इफ द एम्प्लॉय इज एट द लोअर लेवल और अगर उसके पास कोई बहुत ब्रिलियंट आइडिया है तो वो जाके डायरेक्टली प्रेसिडेंट से शेयर कर सकता है, डायरेक्टली जाके वो वाइस प्रेसिडेंट से शेयर कर सकता है कि सी सर फॉर दिस हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मेरे पास उसके लिए एक आइडिया है। एल्स उसको क्या करना होगा, अगर हम हिरार्कियल लेवल फॉलो करें तो पहले वो अपने सुपीरियर को बताएगा, वो उसके सुपीरियर को बताएगा, और जिस किसी लेवल पे उनको ये लगा कि अगर इस आइडिया को मैं अपने नाम से कोट कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सर देखिए ये मेरा आइडिया है, तो ऑब्वियसली जो उसका बेनिफिट होगा वो उसी लेवल पे मिलेगा। जो एक्चुअल जिसने ये आइडिया जनरेट किया है उस तक तो वो बेनिफिट कभी पहुंचेगा भी नहीं। और ये अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात आप छोड़ भी दे तो भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, दिस इज द आयरनी, दिस इज द फैक्ट इन केस ऑफ आवर कंट्री, कि जिनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट कभी मिलता ही नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी माल प्रैक्टिसेस बिटवीन दीज हिरार्कियल लेवल। ये हिरार्कियल लेवल पे इतनी सारी चीजें गलत होती है, तो आपको वो ऑब्वियसली, इसीलिए हम कहते हैं आप कंट्री लेवल पे देख लीजिए कि बहुत सारे लोग अभी भी सफर करें, दे आर डिप्राइव फ्रॉम द बेसिक नेसेसिटीज, वो बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। हिरार्कियल लेवल ऐसा है कि जो बेनिफिट सबसे लास्ट जो खड़ा हुआ है क्यू में, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो वर्किंग अंडर दिस इन्वायरमेंट ओनली, दे आर वर्किंग इन दिस इन्वायरमेंट ओनली, वो भी इसी इन्वायरमेंट पे काम कर रही है। तो जब ये सारी चीजें होंगी, आपका हिरार्कियल लेवल बहुत ज्यादा टाइट होगा, बहुत स्ट्रिंजेंट होगा कि अरे यू आर बाईपासिंग द चैनल, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तो ऑब्वियसली दिस इज समवेयर गोइंग टू अफेक्ट द परफॉर्मेंस, द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। So the organization behavior, it helps in designing the structure. आपके कैसा स्ट्रक्चर हो इसको डिजाइन करता है, इसको बताता है कि भाई दिस इज फ्रूटफुल टू अस, ऐसा हमें स्ट्रक्चर डिसाइड करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वी शुड बी वेरी क्लियर कि who will report whom, क्योंकि अगर ये नहीं हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्दो वी हैव द फ्लेक्सिबल
organization, we are not following any hierarchical system, but this should be there कि who should report whom, कौन किसको report करेगा, कौन किसको गाइडेंस देगा. इफ इट इज नॉट देयर देन देयर विल बी अ chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक chaos हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे इस मैनेजर को रिपोर्ट करना है या मुझे उस मैनेजर को रिपोर्ट करना है. सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन behavior helps in organizational component. I hope it's clear to all of you. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Now let's move ahead. See, what we used, ये OB जो organization behavior है, this we take it as a separate discipline. Fine, this we are considering as a separate discipline which has taken the inputs from the various subjects, from the various disciplines. This organization behavior has. I hope there is someone. Sorry, class. Now, this organization behavior, because it's a separate discipline, we have to consider it as a separate discipline. Now, this organization behavior, it is multidisciplinary in nature. And why I'm saying it is multidisciplinary in nature? Because it has taken inputs from various different disciplines. इन्होंने organization behavior, जिसे हम एक separate discipline कह रहे हैं, उसके लिए जो आपके insights हैं या जो inputs हैं, वो हमने different discipline से लिए हैं. जैसे कि आपका psychology, like your psychology, your sociology, then your social psychology, economics, anthropology, and political science. So all these disciplines, they have contributed in the organization behavior. They have contributed in the field of organization behavior. Now, what we will do, we will discuss one by one कि किसने क्या contribute किया है, किसने क्या organization behavior में contribute किया है. So let's see about this. This is the figure which we have already. यहाँ पे in this figure, let me explain this figure, then I will explain it in detail. अगर साइकोलॉजी की आप बात करें, द सब्जेक्ट साइकोलॉजी, इसने जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कंट्रीब्यूट किया है, तो इसने इंडिविजुअल कंपोनेंट के इनपुट्स या इंडिविजुअल कंपोनेंट के रिगार्डिंग अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. यानी साइकोलॉजी जब भी कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है. अपार्ट फ्रॉम साइकोलॉजी, whatever are the remaining disciplines, यानी कि आपका sociology, social psychology, anthropology or the political science, they are contributing at the group level or at the organization level. यानी या तो वो group level पे दे रही होंगी या organization level पे contribute कर रही होंगी organization behavior की study में. लेकिन सिर्फ psychology अकेला ऐसा discipline है जो इंडिविजुअल लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट को समझने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. और इसके अलावा जितने भी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी रिमेनिंग डिसिप्लिन्स हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ईदर दे आर डूइंग इट एट द ग्रुप लेवल, ग्रुप कंपोनेंट, और एट द ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट. So let us see what psychology have contributed in the field of organization behavior. This psychology, it as we all know that it deals with studying human behavior, which explain and sometimes change the behavior of human and other animals. So the most important thing is that what psychology contribute, it helps in studying the human behavior. पहली चीज तो आपका ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करने में, फिर उसको समझने में, उसको मेजर करने में, उसको एक्सप्लेन करने में, और समटाइम्स आपका चेंज करने में भी. यानी कि अगर नॉट व्हाट आई एम डूइंग, नॉट आई एम ओनली स्टडिंग द एटीट्यूड ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ ह्यूमन का एटीट्यूड समझ ही नहीं रही हूँ. आई एम नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग या अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड ऑफ अ एम्प्लॉय, सिर्फ उसको समझ नहीं रही हूँ, ये भी देख रही हूँ कि उसको चेंज कैसे किया जाता है. यानी कि अगर पर्सन he or she is not satisfied or he or she is not
having a positive attitude towards their job या towards the organization, then how can I change that attitude? यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपनी जॉब या ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स पॉजिटिव फीलिंग नहीं है, पॉजिटिव लाइकिंग नहीं है, एटीट्यूड इज व्हाट दैट यू आर हैविंग द पॉजिटिव और द नेगेटिव लाइकिंग टुवर्ड्स समथिंग। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स या अपनी जॉब के टुवर्ड्स नहीं है, देन हाउ कैन आई चेंज दैट एटीट्यूड? उस एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जा सकता है? इस वे में, इस एस्पेक्ट में साइकोलॉजी आपका हेल्प करता है। साइकोलॉजी इसमें डील करता है कि आप ह्यूमन बिहेवियर को सिर्फ समझिए नहीं, आप ह्यूमन बिहेवियर को चेंज कैसे कर सकते हैं, इस चीज में डील करता है। तो अगर हम ओबी की बात करें, ओबी में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देखिए इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन, कि बंदे का जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है, यानी कि हाउ मच ही और शी इज सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, कितना सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब को लेकर। देन उनका लर्निंग प्रोसेस क्या है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, हमने सबको ट्रेनिंग दिलवाया, कुछ लोग बहुत जल्दी सीख जाएंगे ट्रेनिंग में, दे विल बिकम एक्वेंटेड विद दैट प्रैक्टिसेस कि ठीक है अपना जॉब कैसे करना है, बट सम विल टेक टाइम। तो उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, वी हैव, और दिस साइकोलॉजी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट कि भाई उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा है। अगर लर्निंग प्रोसेस ऐसा है विच टेक टाइम, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गिव देम ट्रेनिंग सेपरेटली। उनको आप ट्रेनिंग सेपरेटली दीजिए उन लोगों से जो बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेते हैं, जो बहुत जल्दी नॉलेज को एक्वायर कर लेते हैं। सो वी आर सेग्रीगेटिंग द एम्प्लॉइज कि फाइन इनका लर्निंग प्रोसेस ऐसा है, दे टेक टाइम इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, बट दीज आर द एम्प्लॉइज दोज हु लर्न और दोज हु ग्रैस्प एनीथिंग वेरी फास्टली, जो बहुत जल्दी से ग्रैस्प करते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस आप कैसा, आपका लर्निंग प्रोसेस कैसा है उसमें हेल्प करता है। फिर आपकी मोटिवेशन टेक्निक, देखिए मोटिवेशन टेक्निक आपको पता है, सिंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर वर्किंग, तो आप हर एम्प्लॉय के लिए, इफ आई एम सेइंग इन माय क्लास देयर आर 12 स्टूडेंट्स एंड इफ आई एम सेइंग दैट आई विल गिव chocolate to each and every student daily, fine, if I am having if I have to take the class 365 days, I will give the chocolates to each and every student after my class. So if I am assuming this thing that this will be a motivation technique for the student, that the next time onwards they will enjoy this class, or they will be very happy for attending this class, it is not so. Why? Because everybody is different. हो सकता है किसी को वो चॉकलेट एक्साइटेड करे, किसी को ये लगे कि ओके फाइन मैम इज अप्रिशिएटिंग अस कि हम रोज रेगुलरली क्लास अटेंड करें, बट मे बी some of them there might be those who are not happy with this technique, जिनको ये अच्छा नहीं लगेगा या जिन्हें चॉकलेट एक टेम्पटेशन के जैसा काम नहीं करेगा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में इफ आई एम सेइंग कि मैं सबको बोनस दे रही हूँ, दिवाली पे बोनस दे रही हूँ, आई एम गिविंग 500 rupees to my employee, and it is not necessary that it is going to excite each and every employee, it is going to motivate each and every employee. तो ये भी नहीं हो सकता कि सारे एम्प्लॉइज एक्साइटेड हो जाए, दे विल बिकम हैप्पी कि चलो भाई दिवाली आ रहा है तो ठीक है 500 रुपीज मैम जो है हम सबको देंगी, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मे बी क्योंकि हो सकता है कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉय किसी ऐसी फैमिली से आता हो जो बहुत फाइनेंशियली साउंड हो, जिनको फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो, तो उनके लिए 500 रुपीज इट मैटर्स नथिंग, इट्स लाइक क्या वैल्यू है उन 500 रुपीज की, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पर्सन बहुत मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहा है, उसके लिए वो 500 रुपीज बहुत मैटर करते हैं। लेकिन एक वही ऑन द कॉन्ट्रेरी एक बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है तो वो सोचेगा 500 रुपीज, ये तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में अच्छे में चला जाता हूँ तो सिर्फ मैं एक बर्गर और एक कॉफी में ही मेरा खर्च हो जाता है, तो ये 500 रुपीज हाउ दे विल एक्साइट मी, नो आई एम नॉट गोइंग टू मोटिवेट विद दिस थिंग, गिव मी समथिंग एल्स, give me something else means I'm not weak financially, मैं financially weak नहीं हूँ, मुझे कुछ ऐसा चीज दीजिए, लाइक चैलेंजिंग जॉब दीजिए
वेयर आई कैन शो माई पोटेंशियल, जहां मैं आपको बता सकूं कि मैं कितना मुझ में कितना पोटेंशियल है, वेयर आई कैन शो माई whatever I have acquired, जो मैंने acquired किया है अपनी लर्निंग से, अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं आपको शो कर सकूं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन हम कहते हैं ना कि यू माइट हैव नोटिस्ड, और आप लोगों के साथ होगा भी, कि जब आप वो थ्रिलर मूवीज देखते हैं या हॉरर मूवीज देखते हैं, तो कुछ को बहुत डर लगता है, उनसे नहीं होता है। सम पीपल फील कि नहीं, इट्स नॉट गुड, आई कैन नॉट वॉच दैट हॉरर मूवी, मैं नहीं देख पाऊंगा या मैं नहीं देख पाऊंगी। बट कुछ के लिए दे टेक इट वेरी इजी, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर वो हॉरर मूवी देख रहे हैं तो लाइट स्विच ऑफ करके देखेंगे, पूरा रूम में डार्क होना चाहिए, मतलब कोई लाइट नहीं होनी चाहिए, देन दे विल वॉच द हॉरर मूवी। व्हाई? बिकॉज द पर्सनालिटी इज एंटायरली डिफरेंट, पर्सनालिटी डिफरेंट है। तो किस किस पर्सन को क्या चीज मोटिवेट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फिगर इट आउट। सिर्फ ये अजम्पशन लगा लेना कि हम एक ही टेक्निक लगा ले, सिर्फ 500 रुपीज दे दे या सबको हमने अप्रिशिएट कर दिया। लाइक अगर कोई पर्सन है, कोई पियून का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अगर आपको लगता है कि अगर मैंने किसी सीनियर मैनेजर को एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का टैग दे दिया, सिंपली टैग, कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं दिया हमने, और वो बहुत खुश हो गए, उनको बहुत खुशी हुई कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टैग दे दिया। अब ये चीज अगर आप पियून के साथ भी करेंगे तो ऑब्वियसली वो खुश नहीं होने वाला है, बिकॉज उसकी फाइनेंशियली नीड्स हैं, उसका वो फाइनेंशियली उतना साउंड नहीं है जितना आपका सीनियर मैनेजर है। तो वो ये चाहेगा कि अगर आपको उसका काम अच्छा लगता है, तो आपको अगर उसको मोटिवेट करना है तो आप कुछ फाइनेंशियली इंसेंटिव दीजिए। तो ये मोटिवेशन टेक्निक्स को समझने में, फिर आपका पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सबकी पर्सनालिटी अलग है। कोई हॉरर मूवी देख के खुश हो रहा है, किसी ने अगर हॉरर मूवी गलती से देख ली तो उसको शायद 2-3 दिन तक नींद ही नहीं आने वाली है। इट डिपेंड्स। देन परसेप्चुअल प्रोसेस, अच्छा चीजों को आप परसीव कैसे करते हैं, आप कैसे देखते हैं। लाइक आपने वो देयर इज अ सेइंग ना कि दैट इज अ, मतलब आप एम्प्टी गिलास है या फुल गिलास है, मतलब हम एक गिलास को रख दें, उसको हाफ फिल कर दें, तो कुछ लोगों को वो लगेगा कि ये आधा खाली है और कुछ को लगेगा ये आधा भरा हुआ है। नाउ इट गिलास वही सेम है, वो आधा ही भरा हुआ है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन। देयर इज समवन हु वांट्स टू जॉइन। Wait. Nobody is there. So now what we are saying कि perception different है लोगों का। क्यों? क्योंकि आप कैसे उसको परसीव करते हैं। तो जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है उनको लगता है कि फाइन, जो आपने गिलास रखा हुआ है दैट इज हाफ फिल, और जो बहुत पैसिमिस्टिक है उनको लगता है नहीं, हाफ एम्प्टी है। यानी आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, वो हर चीज में कमी ढूंढ लेते हैं। कुछ लोगों का होता है बड़ा नेगिंग नेचर होता है, हर चीज में कमी निकालते रहेंगे। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, बहुत ब्रिलियंट मैनेजर्स इस बात में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब हर मैनेजर नहीं बट इट डिपेंड्स, मतलब मोस्टली तो होते हैं कि आप कितना भी अच्छा काम कीजिए वो हमेशा नैगिंग करते रहेंगे, रादर देन अप्रिशिएटिंग यू। वो किसी ना किसी चीज में कहीं ना कहीं कोई कमी ढूंढ के ले आएंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन। इट्स ट्रू ना सुमी? हाँ, एकदम पूरा। क्योंकि जितना उनको भी आप 100% दो, कि वो ये नहीं देखे कि हम तुम्हारा टारगेट 28% है, तुमने अचीव किया 26% की, 2% नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। वो बोलेगा क्यों नहीं है अचीव हुआ, 30% क्यों नहीं हुआ। ये बस दैट्स वेरी ट्रू। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब पर ऐसा भी मैनेजर है जो बोलता है हाँ आज 20% हुआ, 26 हुआ है, तो बाद में 28 क्या 29% भी हो जाएगा। वो मोटिवेशन होता है कि एक मोटिवेशन, होता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा करूंगा और बिल्कुल करूंगी। बिल्कुल वही बिल्कुल चीज। वही चीज है। वेरी ट्रू। सी अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने यहाँ पे कोट किया मैनेजर का एग्जांपल, तो सोमी बहुत आराम से रिलेट कर पाई। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इंडिविजुअल का भी देखिए आप, एक परसेप्शन है कि इफ देयर इज समथिंग, अगर कुछ चैलेंजिंग मुझे मिल गया, तो सम स्टूडेंट्स विल क्लेम। अब लेट्स सपोज अगर कोई जब व्हेन आई वाज डूइंग माय पीजी, तो वी हैव दैट सिस्टम कि हमारी इंस्टीट्यूट था, तो हमारा जो एग्जामिनेशन पेपर आता था वो बाहर से आता था। देन जो कॉपीज इवैल्यूएट होती थी वो बाहर से आती थी। द टीचर्स वर बेस्ट, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाते थे, करवाने के बाद भी दे वर नॉट देमसेल्व्स श्योर
कि जो पेपर आएगा वो विद इन द सिलेबस आ जाएगा या आउटसाइड द सिलेबस आ जाएगा। तो अगर वो एग्जामिनेशन पेपर आ गया एंड इफ वी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू हेल्प अस, वी आर ओनली देयर हु कैन हेल्प अस, हमें ही हमारी हेल्प करनी है, कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आप उसको उस सिचुएशन को एज अ अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि वॉट एवर आई हैव लर्न, जो भी मैंने पढ़ा है, आई कैन टेक दिस चैलेंज, मैं लिखूंगा, मैं बहुत अच्छा करूँ। या फिर आपने शुरू कर दिया रोना कि नहीं दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये तो है ही नहीं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। भाई नहीं भी पढ़ा था तो अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब तो यूनिवर्सिटीज जो ऐसे है कि भाई ठीक है, हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम विद इन द यूनिवर्सिटी हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर फैकल्टी को पता है कि सिलेबस मुझे ये करवाना है तो इसी में से क्वेश्चन देना है। लेकिन वहां प्रॉब्लम ज्यादा होती है जहां क्वेश्चन पेपर भी बाहर से आएगा और इवैल्यूएशन भी आपका बाहर होगा, तो आपको नहीं पता कि हाउ दैट पर्सन इज गोइंग टू इवैल्यूएट यू। लाइक समटाइम्स ये होता है कि आपका हेड राइटिंग बहुत अच्छा है और आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लिखा, अंदर पता नहीं आप उसके क्या लिख के आए, लेकिन जैसे ही फर्स्ट पेज इवैल्यूएटर ने देखा एंड दे यूज्ड टू थिंक कि भाई बहुत सुंदर हैंड राइटिंग है, बड़ा सुंदर हैंड राइटिंग है, जरूर इस स्टूडेंट ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, सिंपली दे गेव यू नंबर। व्हाट इज दैट? दैट इज द परसेप्शन। आप कैसे परसीव कर रहे हैं चीजों को, ये आप पे डिपेंड करता है। देन योर ट्रेनिंग प्रोसेस, आप कैसी ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है ट्रेनिंग का, एक्सटेंसिव है, रिगरस है, या फाइन इट्स ओके। हम बहुत रिगरस ट्रेनिंग नहीं करवाते क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब। आपका जैसा जॉब होगा वैसा ही आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। लाइक अगर आपको अगर पायलट का जॉब है तो ऑब्वियसली आपको एक रिगरस ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो जॉब ही ऐसा है, क्योंकि उस जॉब से बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। सो दे कैन नॉट गो विद कि फाइन ठीक है इट्स ओके चलता है, अगर हम बहुत रिगरस ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे तो भी चलेगा, नहीं। सो दे हैव टू गो फॉर द रिगरस ट्रेनिंग, उनको रिगरस ट्रेनिंग के लिए जाना ही पड़ेगा। देन योर लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। देखिए हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स मिलते हैं, लीडर्स नहीं मिलते। अगर आपको लीडर्स मिल जाएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, कभी भी किसी एम्प्लॉय को कभी अपने मैनेजर से कंप्लेन नहीं होगी ना। इट्स टोटली अप टू द मैनेजर, वो मैनेजर की तरह बिहेव करे या लीडर की तरह बिहेव करे, ये बिल्कुल मैनेजर पर डिपेंड करता है। जब आप मैनेजर हैं तो आपकी सोच ये होती है, आपका थिंकिंग प्रोसेस ये होता है कि जितना भी क्रेडिट है वो मेरा, लेकिन जितने भी एलिगेशंस हैं वो मेरी टीम के। लीडर हमेशा ये सोचता है कि अगर कुछ गलती हो गई है, जहां मैनेजमेंट इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो आई एम देयर, आई एम अकाउंटेबल, आई हैव टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। बट इफ there is any credit, if the management want to give appreciation, then that appreciation belongs to my team, वो मेरी टीम के लिए belong, वो मेरी टीम की वजह से है, मेरी वजह से नहीं है, I am nothing. So they are always standing on the sides of their team, वो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ा है, and that is the difference between the leader and the manager. मैनेजर हमेशा कंप्लेन करेगा, लीडर आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। किसी भी टास्क को असाइन करते वक्त लीडर हमेशा ये सोचेगा, will I be able to do that? क्या मैं खुद कर पाऊंगा ये चीज? मैं दूसरों को कह रहा हूँ, अपनी टीम में किसी सबऑर्डिनेट को कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, अब कोविड-19 में मान लीजिए कोई जो कंटीजेंट जोन है वहां पे चले जाइए और वहां पे सेल्स को करके आइए, हमें वी डोंट नो अबाउट एनी, वी डोंट कंसीडर एनी एक्सक्यूजेस, लेम एक्सक्यूजेस, आपको जाना पड़ेगा और आप वहां पे सेल्स करके आइए। दिस इज द अप्रोच ऑफ अ मैनेजर। बट इफ इट इज अ लीडर, तो वो खुद सोचेगा, क्या मैं खुद जाऊंगा उस जोन में, कंटेमिनेट जोन में, क्या मैं खुद जाऊंगा? अगर मैं खुद नहीं जा सकता तो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ कि वो चले जाए? उनकी भी फैमिली है, हो सकता है वो वहां पे किसी के टच में आ जाए, एंड दिस डिजीज इज कंटेजियस, ये कंटेजियस है, देन तो वी शुड नॉट डू दैट। तो आपका लीडरशिप स्टाइल कैसा है, आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, क्या आप लोगों से एक बॉन्ड बनाने में सक्सेसफुल है या नहीं है? दैट डिसाइडेड योर लीडरशिप इफेक्टिवनेस, वो डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे लीडर है। I don't know whether the Prime Minister Narendra Modi is a good leader or not. I mean I don't want to go into that, but yes, he is a perfect orator. अब आप माने न माने, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वो बोलते हैं तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि उनकी ऑडियंस पे बहुत अच्छे से पकड़ होती है, बहुत अच्छे से, और उनको पता है कि ऑडियंस को परसुएड कैसे करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करना है।
एंड दैट व्हाई इट इज देयर कि आप देखते हैं कि फ्रॉम द लास्ट लाइक फ्रॉम 2014 ही इज एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो व्हाट इज दैट कि आपका स्टाइल कैसा है, वो तो एक ओरिएटर का एग्जांपल है. इसी तरह आप लीडर कैसे हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं या आप एक ऐसे लीडर है जिनकी भाई कोई सुन नहीं रहा है, जिनका कोई बॉन्ड स्टैब्लिश नहीं है, सब अपने मन की करें, या फिर आप धमकी देकर आप अपना काम करवाना चाहते हैं. इट एंटायरली अप टू यू. तो वो आपकी इफेक्टिवनेस डिसाइड करेगा ना. देखिए अब हमने ये समझ लिया साइकोलॉजी क्या क्या बता रहा है हमको. तो ऑब्वियसली किस किस चीज में हेल्प करेगा, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, आप जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं भाई, आप अपनी जॉब को लेके प्राउड फील करते हैं या नहीं, आपको खुशी होती है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हूँ, आपको अच्छा लगता है कि मैं इस जॉब पे काम करूँ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वीकेंड ओवर होगा और मंडे को ओ गॉड मतलब संडे नाइट से आपको ये एंजाइटी होने लगती है कि ओ माय गॉड सेम बॉस, सेम जॉब, सेम ऑर्गेनाइजेशन, पैथेटिक पीपल, pathetic. God knows when I'm going to free from this burden. पता नहीं मुझे कब यहाँ से छुट्टी मिलेगी, कब मुझे बहुत अच्छा जॉब मिलेगा. इसका मतलब ऑब्वियसली आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद योर जॉब, आप नहीं है उस जॉब से खुश. तो जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे आए, अगर जॉब के टूवर्ड्स आपका नेगेटिव भी है, अगर आप नहीं है, आप डिससेटिस्फाइड है, तो उसे उस पर्सन को सेटिस्फाइड कैसे किया जा सकता है. क्या हम अपनी तरफ से ऐसा है जो रीजनेबल है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस पर्सन को एक लाइकिंग डेवलप हो जाए टूवर्ड्स देयर जॉब, टूवर्ड्स देयर मैनेजर, टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल नो कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप टेक्नोलॉजी एडवांस कर लीजिए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आइए, वॉट एवर इट इज, it is possible to replace the unskilled labor. unskilled labor replace की जा सकती है, जो मैनुअली वर्क करती है उसको रिप्लेस किया जा सकता है. लेकिन वो लोग जो स्ट्रैटेजिक, जो की पोजीशन पे है कंपनी पे, लाइक द सीईओ, लाइक योर सीनियर मैनेजर्स, ये बहुत स्ट्रैटेजिक पोजीशंस हैं जिन्हें स्ट्रैटेजी बनानी है, जिन्हें मार्केट को एनालाइज करना है. आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको कोई टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती है. It's not at all possible because टेक्नोलॉजी आप किसी सीईओ की पोजीशन पे है या किसी मैनेजर की पोजीशन पे है, then you can analyze the market. आप एक मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट में आप देखते हैं ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स फेवरेबल है, यानी ठीक है लोगों की इनकम बहुत अच्छी हो रही है, इकोनॉमी में ग्रोथ है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे फेवर में है, गवर्नमेंट कोई नया टैक्स इंपोज नहीं कर रही है, फाइन. डेमोग्राफिक फैक्टर्स यानी आजकल ट्रेंड है, आजकल यूथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है ट्रेंडी क्लोथ्स के लिए, बहुत फैशनेबल क्लोथ्स के लिए, तो यानी सारी चीजें फेवरेबल है. चलिए हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं मार्केट में, बट दिस थिंग इज एनालाइज्ड बाय दैट पर्सन ओनली. वो चीजें एनालाइज वो पर्सन कर सकता है और उसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी बना सकता है. ऐसा तो है नहीं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो सिर्फ आप ही उस सेक्टर में सोच रहे हैं या उस मार्केट में एंटर करने की सोच रहे हैं. देयर आर n नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर थिंकिंग द सेम वे, और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव एज पे रहेगी जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे स्ट्रांग होगी, जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी होगी. अब देखिए जियो का अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत सारी आपने देखा ऑर्गेनाइजेशंस जो इस सेक्टर में थी उनको क्या करना पड़ गया, उनको मर्जर करना पड़ गया कि अब पहले वो अलग अलग थी, सेपरेट थी, अब दे कम टुगेदर. व्हाई? क्योंकि जियो की स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी. जो हमें डेटा कंजम्पशन पहले हम बहुत सोच समझ के मतलब नेट को खर्च किया करते थे, व्हाट वी यूज्ड टू थिंक कि नहीं भाई बहुत कॉस्टली है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो बहुत सोच समझ के खर्च करेंगे. जब जियो आया तो जियो ने दे हैव चेंज दैट परसेप्शन, वो इजीली अफोर्डेबल बना दिया लोगों के लिए. अब द पीपल फॉरगेट अबाउट दैट थिंग कि हम कितना डेटा यूज कर रहे हैं, कितना डेटा का कंजम्पशन कर रहे हैं. तो उनकी स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग थी. अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि दिस स्ट्रैटेजी कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय एनी टेक्नोलॉजी, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रैटेजी तब चेंज करनी पड़ेगी जब आपका कॉम्पिटिटर भी सेम स्ट्रैटेजी बना लेगा. और ये चीजें तो कोई एज ए ह्यूमन बीइंग कर सकता है जिसके पास वो एक्सपर्टीज हो, जिसके पास वो नॉलेज हो. टेक्नोलॉजी को थोड़ी समझ में आ रही है ये चीजें,
भाई आप एक रॉ डेटा देते हैं उनको और वो आपको एक इंफॉर्मेशन, एक चार्ट डेवलप करके दे देती है कि फाइन दिस इज द फाइनल इंफॉर्मेशन, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देते तो हम हैं, वी आर प्रोवाइडिंग दैट इंफॉर्मेशन। अब अगर इंफॉर्मेशन भी अगर ये कह दे कि नाउ द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, सी टेक्नोलॉजी कैन नेवर एवर अंडरस्टैंड द इमोशंस, इमोशंस नहीं समझ सकती, उसको नहीं समझ में आ रहा। जब हम बहुत सारी बार आप लोग मॉल में जाते हैं और बहुत सारे लोग आपसे सर्वे करवाते हैं, वो कुछ लेके खड़े हुए होते हैं और वो आपसे कहते हैं कि प्लीज प्लीज स्पेयर योर 5 मिनट्स फॉर फिलिंग दिस क्वेश्चन है। या आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहां आता है कि वुड यू लाइक टू टेक दिस सर्वे, क्या आप सर्वे करना चाहते हैं? व्हाई दे आर डूइंग सो? बिकॉज दे वांट टू नो कि भाई ऐसी कौन सी चीज है, क्या हमारा प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा लग रहा है, क्या हमारी सर्विस कस्टमर को अच्छी लग रही है। इफ इट इज नॉट सो, हम क्या और चेंज कर सकते हैं इसके अंदर सो दैट कस्टमर बिकम ओवरवेल्म, कस्टमर को बहुत ज्यादा खुशी हो और कस्टमर ये सोचे कि नहीं इस कंपनी को छोड़ के मुझे किसी और दूसरी कंपनी के पास जाना ही नहीं है, दिस इज द बेस्ट कंपनी, ये बहुत बेस्ट कंपनी है, ये इनकी जैसी सर्विसेज कोई नहीं दे सकता, दे आर द बेस्ट कंपनी। why they are doing these things, they are doing survey। अब सर्वे करते वक्त क्या है, like for example if I am working in an organization or let's take your example instead of that। अब आप स्टूडेंट हैं और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हाउ गुड आई एम एज अ टीचर, मैंने आपको एक क्वेश्चनएयर दिया, मे बी लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन क्रिएट करें कि हो सकता है कि यू आर 12 इन नंबर, maybe 4 or 5 students they don't like me at all, but because of that pressure, that peer pressure, that classmate pressure, क्योंकि सब वहां पे लिख रहे होंगे कि very satisfied, very good ma'am, your way of teaching is very excellent, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई बेवजह हमको किसी परेशानी में नहीं पढ़ना है, तो what we are going to do, हम भी लिखने वाले हैं कि we are highly satisfied ma'am, very good approach of teaching। So if there is a technology, now they are not understanding that emotion, but as a person, as a teacher, if I'm present there, then because of their body language, because of their gesture, because of their posture and the way they are attending my class, how much they were attentive in my class, वो कितने attentive थे मेरी क्लास में, कितना कंसंट्रेट कर रहे थे मेरी क्लास में, कि उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, इस सब से एज अ ह्यूमन बीइंग आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई वो उनको ये सब्जेक्ट कितना अच्छा लग रहा है और कितने ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। बट दिस कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आप एक डेटा देंगे, अगर वो डेटा मैनिपुलेटेड है, अगर सबने लिख दिया वेरी गुड, तो जो आउटपुट जनरेट होगा वो यही होगा कि परफेक्ट फैकल्टी, वेरी गुड, बट दैट इज नॉट द रियल थिंग, वो सच नहीं है। तो सेम इज द केस विद द जॉब सेटिस्फेक्शन। भाई जहां मुझसे बोला जाए कि आपका जॉब सेटिस्फेक्शन सर्वे कर रहा है, आपको अपना नाम देना है, तो आई नो वेरी वेल कि अब ये जाने वाला है टॉप मैनेजमेंट के पास या ये जाने वाला है सीनियर लेवल पे जहां मेरा नाम मेंशन है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल से एवरीथिंग पॉजिटिव अबाउट माय ऑर्गेनाइजेशन। मैं हर चीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पॉजिटिव बोलूंगी। ईदर दीज ऑल थिंग्स शुड बी डन यूनानिमसली, कि आप या तो नाम एड्रेस कुछ नहीं पूछ रहे उससे, तब तो ठीक है, आपको कुछ इनसाइट्स मिल भी जाए, कुछ इनपुट्स मिल भी जाए, बट इफ यू आर आस्किंग दैट पर्सन कि जस्ट कोट योर नंबर, जस्ट गिव योर नेम एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो कुछ आपको सच में बताने वाला है, देन दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, वो नहीं हो पाएगा। देन योर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, कि आपकी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कैसा है, इंडिविजुअल डिसाइड कैसा करता है, वो कौन सी सारी चीजें हैं जो वो कंसीडर करता है, वो कौन से फैक्टर्स है, हाउ दे आर गोइंग टू कम टू दैट कंक्लूजन, उस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचते हैं, वो डिसीजन उन्होंने कैसे लिया, ये चीजें समझने में आप इस चीज के लिए ओबी में कंट्रीब्यूट करता है। देन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बताती हूँ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या, बाकी आप में से कुछ को तो पता होगा। एज परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है पीरियोडिकली होता है, जहाँ पे हम एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसे रिव्यू करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं एंड देन वी यूज टू जज कि क्या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है या किसी सपोर्ट की डेवलपमेंट की जरूरत है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि दिस एम्प्लॉय इज नॉट एट ऑल गुड फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको फायर कर देना चाहिए, मतलब क्योंकि मेरे लिए कोई फ्रूटफुल नहीं है, मेरे लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है ये एम्प्लॉय।
तो दिस वे वी यूज टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू जब करते हैं उसी को आप परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। देन योर एटीट्यूड मेजरमेंट, आप एटीट्यूड को कैसे मेजर करेंगे? भाई आपने कहा कि भाई मुझे नरेंद्र मोदी जी बहुत पसंद है, that is your attitude towards prime minister, but how I am going to measure that attitude? कितना पसंद है, up to which extent? This can be done with the help of this psychology. It means the psychology is contributing in understanding the or in measuring the attitude. Psychology help करती है हमारी OB के थ्रू, क्योंकि OB में वो यही कंट्रीब्यूट कर रही है कि आप एटीट्यूड को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय का सिलेक्शन, हमें बहुत रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। आप अगर आपने एक ऐसे पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, आपको मान लीजिए सेल्स का जॉब है और सेल्स की जॉब में आपको पता है कि आपको डोर टू डोर सेलिंग करना है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और लोगों को कन्विंस करना है कि दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, है ना, ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, इस प्रोडक्ट को आप परचेज कर लीजिए। बट दैट पर्सन इज वेरी शाय, दैट पर्सन इज वेरी रिजर्व, दैट पर्सन इज वेरी इंट्रोवर्ट, वो बोल नहीं सकता, वो अपने आप में रहता है। अगर हमने उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आप बताइए कि वो कैसे जाके सेल्स कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत शाय है। अब वो शाय है, उसको पसंद नहीं है लोगों से मिंगल अप होना, उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों से इंटरैक्ट करूं। ही वांट कि बहुत जब मुझे मिनिमम मुझे इंटरेक्ट करना पड़े लोगों से, एल्स आई विल बी बिजी विद माय वर्क। अब ऐसे अगर पर्सन को हम ये कहें कि प्लीज जाके आपको सेल्स का जॉब करना है और आपको लोगों को कन्विंस करना होगा, अब जब आपको कन्विंस करना होता है तो आप क्या करते हैं, जैसे हम मूवीज के केस में देखिए, हम क्या करते हैं कि हम लोगों ने अक्सर सुना है कि वो क्या करते हैं, जो मूवीज बनाते हैं वो सपने बेचते हैं। एंड इफ यू आर नॉट गुड in this fantasy, in creating the fantasy, अगर आप सपने नहीं बना सकते तो आप उन्हें बेचेंगे कैसे, आप उनको सेल आउट कैसे करेंगे, आप लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे कि ऐसा हो सकता है? हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस द पीपल? दे आर नॉट गोइंग टू कन्विंस सो इजिली। मैंने कहा और आपने मान लिया, ऐसा तो है नहीं। आई हैव टू कन्विंस यू, बट इफ द पर्सन डजंट हैव दैट एबिलिटी, अगर पर्सन के अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है और आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, then that employee will be a liability to your organization. वो एम्प्लॉय आपके लिए एक बर्डन हो जाएगा, क्योंकि आपको सैलरी तो उसको देना पड़ेगा irrespective of that कि भाई उसका काम कैसा भी था, सैलरी आप देंगे। हाँ, हो सकता है समटाइम्स यू कैन से कि हम सैलरी डिडक्ट कर लेंगे, लेकिन देंगे तो सही ना। तो आपको एम्प्लॉय सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है ये पहले से ही कि आपका जो पर्सन जॉब फिट होना चाहिए, जिस जॉब के लिए जो पर्सन चाहिए, जिस नॉलेज का चाहिए, जिस स्किल का चाहिए, जिस एबिलिटी का चाहिए, वही पर्सन उस जॉब पर आए, उस पर्सन को ही वो जॉब मिले, मिसमैच ना हो। देन योर जॉब डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस। और जॉब डिजाइन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वर्क स्ट्रेस आप लोग समझते हैं कि वर्क से रिलेटेड जो आपकी जो वर्किंग लाइफ है उसमें जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, आपके पीयर्स की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की वजह से, मैनेजर्स की वजह से, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो उस स्ट्रेस को समझने में भी आपका ओबी हेल्प करता है। और ये सारी चीजें इन्होंने कहाँ से ली है? ये सारी चीजें उन्होंने ली है साइकोलॉजी से, बिकॉज साइकोलॉजी इज प्रोवाइडिंग दैट इनपुट टू ओबी टू डू दीज ऑल ग्रेट थिंग्स so that we can understand the individual, क्योंकि ये जॉब सेटिस्फेक्शन हम इंडिविजुअल लेवल पे समझ रहे हैं, ये डिसीजन मेकिंग हम इंडिविजुअल लेवल पे समझ रहे हैं, देन आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल हम एक एक इंडिविजुअल का कर रहे हैं, आपका एटीट्यूड एक एक इंडिविजुअल का समझने की कोशिश करें, फिर एम्प्लॉय सेलेक्ट अब बल्क में, मतलब एक एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, आपने आज 20 इंटरव्यू शेड्यूल किए, लेकिन पहले आप एक एम्प्लॉय को, ऐसा तो नहीं है इंटरव्यू देते वक्त आप सबको एक साथ बुला लेते हो, प्लीज कम टुगेदर, और हम देखते हैं भाई किसका हाइट अच्छा है, किसका वेट अच्छा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल सेलेक्ट यू। नो, तो इट विल हेल्प इन एम्प्लॉय सिलेक्शन, इट विल हेल्प इन जॉब डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस, कि आपका वर्क स्ट्रेस से आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं वर्क स्ट्रेस को, उनको समझने में ये हेल्प करता है। I hope it's already 12:20 and I have to take the lecture by till 12:50.
So sorry for 5 minutes. I was not at all aware. Anyway, apart from that, I have given you one that Google form link, which is there in this group. मैम UEM first year. मैम वो That's not परमिशन open. फिर हाँ मैम परमिशन मांग रहा है. हाँ बिल्कुल, नो नॉट एट ऑल इशू. जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो मेरे पास परमिशन के लिए आ जाएगा. आई विल गिव यू दैट परमिशन, और प्लीज आपके पास जब भी टाइम हो, मतलब आज ही, आप उसे फिल कर दीजिएगा. ओके मैम. मैम Okay. अभी कर रहे हैं आप वो परमिशन ये एक्सेप्ट कीजिए, अभी कर देंगे. ओके ओके, आई विल डू दैट. ओके, आई विल डू दैट. थैंक यू मैम. थैंक यू बेटा. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. थैंक यू दीपक. थैंक यू योगेश. Thank you so much, ma'am. थैंक यू ताइशा. आप Tiyasha. करेक्ट. ओके, थैंक यू. आई हैव प्रैक्टिस्ड इट. You can do one thing. जब भी I think this is your lunch time. तो आपको जब भी आप लोग मुझे रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन के लिए, I will give you that permission and you can take that quiz. Fine. मैम ओपन नहीं हो रहा है, काइंडली एक्सेप्ट कीजिए. मैं अभी कर दे रही हूँ. Okay.